Good evening, everyone. Am I audible? Good evening, sir. Yes, good evening. In the morning, I took a lecture, and I think that 10 students were 13, 10 or 11 students were there. That's okay. Amira, Achal, Mishra, Shilpa, Angela, Anjali, Hina, Janvi, Nikita. Sorry. Post your roll numbers in the WhatsApp chat box. In this, in this chat box, Zoom chat box. Okay. Let's begin with the lecture. That is chapter 6A. We had a discussion about the income from capital gain, and अच्छे खासे points उसमें cover किए हमने in the morning. And now we are going to discuss about the chapter 6A. Now, what is chapter 6A? So chapter 6A is a general deduction, I can say as general deduction होता है जिसमें हम लोग सारे sources की whatever the sources are there, that we are going to add all the sources, whatever the income we have earned from these sources. Suppose, for example, I'm doing a job and I got a salary of rupees 3 lakh rupees. 3 lakh rupees में हम लोग ने taxable salary calculate करके deduction under section 16 apply करके उसके बाद हमें जो net taxable salary आया that is 2,50,000. ठीक है, so my 2,50,000 will become a net taxable salary. That is one of the sources of income, that is from salary. Then I have a income from house property as rupees 1 lakh rupees net income, that is income from let out house property. ठीक है, net income from let out house property जिसमें मैंने apply कर दिया है deduction under section 24 minus करके I got net 1 lakh. So 2,50,000 and 1 lakh. ये जो होगा इसका जो total होगा that will be your chapter that will be your gross total income. क्या हो जाएगा वो? It will become your gross total income. मतलब दोनों को मैंने add कर दिया. Add करने के बाद मुझे amount जो रहेगी that is 3,50,000. 2,50,000 plus 1 lakh. Salary का 2.5 लाख रुपए income है मेरा और 1 lakh rupees is my income of house property. दोनों को मिला दिया तो that will become as 3,50,000 and 3,50,000 will be known as gross taxable income. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे how to compute net taxable income. So net taxable income, अभी ये मैं net taxable income की बात कर रहा हूँ, फिलहाल मैं gross taxable income की बात कर रहा हूँ. So आप यहाँ पे देख सकते हो that is income from salary, income from house property, income from business profession, income from capital gain and income from other source. So suppose मेरी यहाँ पे income है it is 2 lakh, मेरी net income आ रही है 2.5 lakh and house property की income है 1 lakh. टोटल हो जाएगा. सो यहाँ पे देख सकते हो ग्रॉस टोटल इनकम 1 2 3 4 and 5 that is 3 point. Understood here? So this becomes my gross taxable total income. Gross total income में मुझे यहाँ पे क्या अप्लाई करना है? Deduction under chapter 6A. Now deduction under chapter 6A which helps you to avoid paying the tax. आप इस सेक्शन को कैसे यूज कर सकते हो? टैक्स के अमाउंट को आपको कम पे करना है. तो टैक्स अमाउंट कम पे करना है उसके लिए आपकी टैक्सेबल इनकम कम होनी चाहिए. ठीक है, somebody's mic is on. Put off your mic. So मुझे यहाँ पे क्या करना है? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से अप्लाई करना है, जिसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे टैक्स की अमाउंट को कम कर सकता हूँ. टैक्स की अमाउंट को कम करना है तो क्या हो जाएगा? टैक्स की अमाउंट को अगर मुझे कम करना है तो मुझे टैक्सेबल इनकम को कम करना पड़ेगा. तो टैक्सेबल इनकम को हम कैसे कम कर सकते हैं? बाय doing some investment or by getting some type of deduction under chapter 6A. ये मुझे मिल गया. तो सपोज मेरा यहाँ पे चैप्टर 6A में आ रहा है 1.5 लाख टोटल. ठीक है, अभी तक यहाँ तक जो मेरी इनकम थी तो यहाँ पे 3.5 लाख बन रहा था.
तो 3.5 लाख बन रहा था, मतलब यहाँ पे 2,50,000 तो फर्स्ट में जो है हमारा वो 2,50,000 तो एग्जेम्प्ट रहता है, ठीक है। 2,50,000 के बिलो अगर आपकी इनकम है तो यू डोंट नीड टू पे एनी टैक्स, बट इफ योर इनकम एक्सीड्स 2,50,000 देन जो ऊपर का अमाउंट है दैट इज 3.5 माइनस 2.5, 1 लाख रुपीज, उस 1 लाख रुपीज पे आपको टैक्स भरना है स्लैब रेट पे। आई एम टॉकिंग अबाउट दी स्लैब रेट, ठीक है। तो 1 लाख रुपीज पे मुझे टैक्स भरना है। बट मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, चैप्टर 6 से मैं 1.5 लाख का डिडक्शन ले लिया। 1.5 लाख का डिडक्शन लेने से मेरी नेट टैक्सेबल इनकम हो गई सिर्फ 2 लाख रुपए। सो 2 लाख रुपए इनकम हो गई, मतलब यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट्स, दैट इज आई डोंट हैव टू पे द टैक्स बिकॉज आई एम कमिंग अंडर दी लिमिट, दैट इज जो 2.5 लाख का लिमिट है, मैं 2.5 लाख के अंदर मेरा यहाँ पे इनकम हो रहा है। सो दैट्स व्हाई आई डोंट नीड टू पे एनी टैक्स। क्लियर विद दिस पार्ट? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो आइए जानते हैं चैप्टर 6 के अंदर क्या क्या हमें मिल सकता है, क्या क्या मटेरियल है, क्या क्या किस डिडक्शंस को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं किस तरीके से। सो वी हैव हियर इज एटीसी, इट इज रिलेटेड टू रिस्पेक्ट ऑफ सेविंग्स, मतलब यहाँ पे कुछ आप कुछ जगह पे इन्वेस्टमेंट करने से, इट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, प्योरली रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। तो अगर यहाँ पे कोई डिडक्शन सेक्शन एटीसी में हम लोग क्या कर सकते हैं, इट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे कोई जो आइटम्स है जैसे कि एनएससी के बॉन्ड्स खरीद लिए या फिर प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग क्लेम कर सकते हैं। देन ट्यूशन फीस है, एलआईसी है, एन्यूटी है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें जहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसमें हम लोग क्लेम कर सकते हैं। कुछ 17-18 आइटम्स दिए गए हैं, तो उसमें अगर हम लोग ने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो हम लोग एटीसी में ये ले सकते हैं, डिडक्शन ले सकते हैं। देन 80CCC पेंशन फंड के रिलेटेड है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 80D में आता है, 80DD में डिपेंडेंट हैंडीकैप आता है, 80E में इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन आता है, 80TTA में इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स एंड सेविंग अकाउंट आता है, 80TTB में फिक्स डिपॉजिट्स आता है और 80U में सेल्फ हैंडीकैप आता है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सेक्शन ये क्या है, ठीक है, किस तरीके से हम लोग लिमिट क्लेम कर सकते हैं। चलो लेट्स अंडरस्टैंड। फर्स्ट इज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C. Now 80C it is purely related to investment. It is purely related to investment here. ठीक है। So जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेमेंट ऑफ LIC प्रीमियम ऑन द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल, द स्पाउस और एनी चाइल्ड ऑफ इंडिविजुअल, मतलब मैंने लाइफ इंश्योरेंस की कोई पॉलिसी खरीदी है जिसका मैं प्रीमियम भरता हूँ। क्या भरता हूँ मैं? प्रीमियम। देखो यहाँ पे क्लियरली बोला है प्रीमियम वर्ड इज यूज, तो प्रीमियम ऑफ द लाइफ। सो फॉर एग्जांपल आई एम पेइंग, मैं मेरा खुद का है, मेरे फैमिली का है, ऐसे करके मैं मंथली आई एम पेइंग 10,000 प्रीमियम एज प्रीमियम रुपीज 10,000 पर मंथ। सो एनुअली कितना हो जाएगा? हाउ मच विल बी एनुअली? 1,20,000. 1,20,000, ठीक है। सो LIC का प्रीमियम भरता हूं मैं, एंड साथ ही मेरा यहाँ पे लॉ का पढ़ाई चल रहा है। तो ट्यूशन फीस जो है, ट्यूशन फीस का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? ट्यूशन फीस मतलब यहाँ पे जो आपका फीस रिसिप्ट है कॉलेज का, कॉलेज की बात करो मैं, ट्यूशन मतलब छोटा वो जो ट्यूशन आप जाते हो आजू बाजू में जिधर भी जाते हैं बच्चे, वो ट्यूशन फीस, वो ट्यूशन नहीं। यहाँ पे जो हाँ जो एजुकेशन फीस है, जैसे कि आपकी कॉलेज की फीस रिसिप्ट है, उसके अंदर जो ट्यूशन फीस का एक ये है अमाउंट है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरी फीस है टोटल 30,000, उसमें से 8,000 रुपीज इज माई ट्यूशन फी। कितना है? 8,000। वो 35,000 में बहुत कुछ रहता है, लैब फी, ये फीस, स्पोर्ट्स फीस, ठीक है, आईवी का फीस, ठीक है, एग्जाम फीस, मेनी अदर। सो उसमें एक ट्यूशन फीस का कॉलम रहता है, तो उतना अमाउंट जो है ट्यूशन फीस का, दैट आई कैन क्लेम, मैं यहाँ पे एटीसी में क्लेम कर सकता हूँ। मतलब मैंने उस 8,000 को भरा, तो 8,000 भरा तो मैं यहाँ पे डिडक्शन ले सकता हूँ, मेरी इनकम उतनी कम दिखा सकता हूँ मैं 8,000 से। देन एनएससी के सेविंग सर्टिफिकेट से, सो एनएससी में मैंने यहाँ पे एनएससी में यहाँ पे मैंने सपोज 15,000 रुपीज मैंने उसके बॉन्ड्स खरीदे, ठीक है। नाबार्ड के मैंने यहाँ पे सपोज नाबार्ड के बॉन्ड्स खरीदे 5,000 रुपीज के, ठीक है, ये हो गया। देन contribution to senior citizens scheme, बहुत सारे ऐसे सब डिडक्शंस आर अवेलेबल और टू रेसिडेंट इंडिविजुअल, तो ऐसे है। देन हाउसिंग लोन इंस्टॉलमेंट, जैसे कि हम लोग का हाउस प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स,
ठीक है, यूलिप में मैंने भर दिया, ठीक है, अब बचा यहाँ पे प्रोविडेंट फंड में मैं कंट्रीब्यूशन करता हूँ, वो भी ले सकते हैं हम लोग क्लेम। और हाउसिंग लोन, ये मैंने सिर्फ कुछ आइटम्स बताइए जहाँ पे आप देख सकते हो, आपके टेक्स्ट बुक में आपको यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स मिलेगी, तो वो आपको देखना है, एक बार गो थ्रू करना है, ठीक है। धन रक्षा, फिर वो अक्षय या जीवन अक्षय, ऐसे बहुत सारी स्कीम्स है, वो स्कीम्स में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको एटीसी में बेनिफिट मिलता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट बहुत जरूरी है, हाउसिंग लोन इंस्टॉलमेंट। मतलब जैसे कि हम लोग का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है, उसमें जो हम लोग लोन पे करते हैं, तो लोन पे करते हैं, लोन का इंटरेस्ट जो पे करते हैं, तो दैट इंटरेस्ट कैन बी क्लेम्ड अंडर सेक्शन 24, ठीक है। तो उसका इंटरेस्ट अमाउंट हम लोग क्लेम करते हैं कहाँ पे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में। उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट अगर आपने जो भरा रहेगा पूरे साल भर में, दैट यू कैन क्लेम इन एटीसी, आप उसका क्लेम यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। तो वो मैं अभी एग्जांपल इसमें नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो अभी हमारी टोटल अभी कितना हो रहा है यहाँ पे स्टूडेंट्स, हाउ मच इज द टोटल ईयर? 1,48,000। 1,48,000, वाह, परफेक्ट आया, मतलब इतना, ठीक है। सो 1,48,000 ये हमारा क्या आ गया है, दैट इज अवर 1,48,000 इज अवर टोटल इन्वेस्टमेंट। मतलब अभी मैंने टोटल यहाँ पे कितना किया है, 1,48,000 का इन्वेस्टमेंट, मतलब ये मैंने फाइंड आउट किया है, कुछ में मैंने प्रीमियम भर दिया है, ट्यूशन फीस है। सो दिस अमाउंट 1,48,000 कैन बी claim means it is claimed under 80C, ठीक है। अब यहाँ पे जरा बात की जाए तो यहाँ पे मैक्सिमम डिडक्शन जो दिया है स्टूडेंट्स, वो कितना है, मैक्सिमम डिडक्शन, मतलब उसमें भी यहाँ पे क्या बोला है, लिमिट बोला है, कितने का लिमिट बोला है, 1.5 लाख। अगर सपोज ये अमाउंट हो जाता है 1,48,000 से 2,48,000, मेरा यहाँ पे 2,48,000 का मैं यहाँ पे क्लेम कर सकता हूँ, लेकिन क्लेम मेरा मैक्सिमम कितना क्लेम होगा, ओनली 1,50,000। तो यहाँ पे उन्होंने एक लिमिट स्पेसिफाई कर दी है, नहीं तो लोग क्या करेंगे, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम क्या होगा स्टूडेंट्स, कि कोई टैक्स ही नहीं भरेगा। सो इसीलिए उन्होंने क्या है, एक लिमिट करके रखी है, दैट इज 1,50,000 तक आप डिडक्शन ले सकते हो मैक्सिमम। अभी मेरा यहाँ पे इनकम कितना हो रहा है, मेरा यहाँ पे क्लेम कितना हो रहा है, 1,48,000, तो मैं ले सकता हूँ ना, क्योंकि 1,50,000 के बिलो है, तो आई कैन टेक 1,48,000। तो यहाँ पे क्या है, विच एवर इज लेस, ठीक है, विच एवर इज लेस, मतलब सपोज मेरा यहाँ पे 1,48,000 लेस आ रहा है, तो 1,48,000 आई कैन क्लेम। इधर यहाँ पे सपोज अगर कभी यहाँ पे 2,48,000 हो गया, डबल हो गया, 2,48,000 हो गया, तो यहाँ पे मेरा विच एवर इज लेस में 1,50,000 है। इज इट क्लियर? सो मैक्सिमम डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड इज ₹1,50,000। क्लियर विद दिस पार्ट? तो मेरा यस सर। इनकम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इनकम कम हो जाएगा मतलब टैक्स भी कम हो जाएगा, जैसे मैंने स्टार्ट में आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया। क्लियर विद दिस? शैल वी गो अहेड विद अदर सेक्शंस? सो दिस इज ऑल अबाउट द 80C। ओके, now let us discuss 80CCC। 80CCC क्या होता है? तो 80CCC इसमें कुछ ज्यादा नहीं दिया है, ठीक है। दैट इज 80CCC, इट इज प्योरली रिलेटेड टू द कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड। तो कंट्रीब्यूशन अगर आपने पेंशन फंड में किया है, जैसे कि स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है या रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, वट एवर द अमाउंट यू हैव कंट्रीब्यूटेड, ठीक है, वट एवर द कंट्रीब्यूशन यू आर डूइंग, दैट कैन बी क्लेम्ड अंडर सेक्शन 80CCC। किसमें क्लेम कर सकते हैं, 80CCC। तो सपोज अभी मेरा लास्ट इसमें कितना था, 80C में मैंने कितना क्लेम किया, प्रीवियस स्लाइड में कितना क्लेम किया, 1,48,000। वेरी गुड, 1,48,000 I have to claim here. ओके, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड में मैंने क्लेम, मेरा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हुआ है 52,000 का। कितना होता है, 52,000 का। सो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अंडर सेक्शन 80CCC क्या बोला यहाँ पे, मैक्सिमम डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड, मैक्सिमम डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड इज ₹1,50,000। तो कितना मैक्सिमम ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे तो सिर्फ मैंने कितना किया है, 52,000 किया है, तो आई कैन क्लेम। बट यहाँ पे एक नोट दिया है स्टूडेंट्स, अंडर सेक्शन 80CCE, ठीक है, दैट इज अंडर सेक्शन 80CCE।
द टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, ठीक है, 80C एंड अंडर सेक्शन 80CCC should not exceed ₹1,50,000। मतलब दोनों को मिला के, कौन से दोनों को, 80C और 80CCC, मतलब इन्वेस्टमेंट इन सेविंग्स, सेविंग्स वाला जो सेक्शन है 80C का एंड 80CCC मतलब पेंशन फंड, ये दोनों को मिला के क्या होना चाहिए, 1,50,000 क्रॉस नहीं होना चाहिए। मतलब मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 1,50,000 दोनों को मिला के। मेरा यहाँ पे एग्जांपल दिया तो कितना हो रहा है यहाँ पे टोटल, कितना हो रहा है दोनों का, 80C प्लस 80CCC कितना हो रहा है यहाँ पे, 2 लाख। यस, वेरी गुड, 2 लाख हो रहे हैं यहाँ पे। सो हाउ मच अमाउंट आई कैन क्लेम हियर, मैं मैक्सिमम कितना ले सकता हूँ यहाँ पे, 1,50,000। आई कैन क्लेम मैक्सिमम डिडक्शन एज 1,50,000 I can claim. Is it clear? Is it clear, students? Yes, Is sir. Yes, sir. it- Okay, that's great. Coming to the next section, that is deduction under section 80D. So D is related with the Mediclaim insurance premium. पता है Mediclaim insurance premium क्या होता है, students? What is Mediclaim insurance premium? What do you mean by Mediclaim insurance premium? Mediclaim क्या होता है? हेल्थ इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज होती है वो हम लोग अगर बाय करते हैं, जैसे कि टाटा हेल्थ, देन वो बजाज हेल्थ, ठीक है, उसकी अगर हम लोग पॉलिसी बाय करते हैं और वो हेल्थ इंश्योरेंस में, मेडिकल इंश्योरेंस में क्या होता है नॉर्मली कि लाइक हम लोग का जो भी हेल्थ के रिलेटेड जो भी खर्चा रहता है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग कुछ 10,000 रुपीज मैंने प्रीमियम भरा खुद के हेल्थ इंश्योरेंस का, और मेरी तबीयत बहुत अचानक से उस पर्टिकुलर ईयर में खराब हो गई, 1 साल का 10,000 रुपीज एनुअली में भरता हूँ, तो मैंने उस पर्टिकुलर ईयर में यस प्रीमियम पॉलिसी विच इज बायड एंड यूज्ड इन हेल्थ केयर एक्सपेंसेस, यस वेरी गुड। सो नॉर्मली ये मैंने क्या किया, 10,000 रुपीज पे किया और उसी साल में मैं बीमार पड़ गया, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम कर सकता हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम कर सकता हूँ मतलब जो भी मेरा बिल बनेगा हॉस्पिटल में, हॉस्पिटलाइज्ड और बिल बनेगा, तो सपोज 1,20,000 का बिल बना है, तो एक लिमिट रहता है, 5 लाख तक नॉर्मली लिमिट मिलती है, तो 1,20,000 का बिल बना, तो 1,20,000 का लिमिट बिल बना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने तो 10,000 ही भरा है प्रीमियम, बिल बना 1,20,000 का, तो इंश्योरेंस मुझे मिलेगा, दैट इंश्योरेंस कंपनी इज गोइंग टू पे माई बिल ऑफ ₹1,20,000। ओके, सो अभी मैंने कितना भरा, 10,000, तो 10,000 प्रीमियम कैन बी क्लेम अंडर सेक्शन 80D। तो मैंने यहाँ पे कितना पे किया है, ₹10,000, ठीक है, फॉर सेल्फ, खुद के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे बोला डिडक्शन फॉर मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय असेसी, मतलब मैं असेसी हूँ ना, आउट ऑफ हिज टैक्सेबल इनकम, उनकी जो टैक्सेबल इनकम है उसमें से भरा। डिडक्शन अवेलेबल टू रेसिडेंशियल इंडिविजुअल एंड HUF, ठीक है। प्रीमियम मस्ट बी पेड बाय क्रॉस चेक, क्या कंडीशन दिए है, जो भी प्रीमियम भरूंगा मैं, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में मैंने क्या किया, प्रीमियम भरा है 10,000 रुपए, अगर मैं कैश में भरूंगा तो आई कैन नॉट क्लेम दिस, मैंने चेक में, मेरा चेक में भरा हुआ रहना चाहिए, या फिर NEFT, IMPS, RTGS जो भी रहेगा वो ऑनलाइन होना चाहिए वो, ठीक है। द अमाउंट ऑफ डिडक्शन इज ₹25,000, मैक्सिमम कितना मैं क्लेम कर सकता हूँ, 25,000 फॉर सेल्फ कॉमा स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन। मतलब अगर मैंने ये पॉलिसी, और अभी मैंने इसके बाद क्या सोचा कि लाइक मैं 13,000 रुपया और मैंने किया फॉर स्पाउस एंड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में भी कौन से होने चाहिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, ओके। सो डिपेंडेंट चिल्ड्रन का मैंने यहाँ पे पेमेंट किया है, तो 23,000 हो रहा है, यस आई कैन क्लेम, तो मैक्सिमम कितना है, 25,000। अब उसके बाद फर्दर डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए भी अवेलेबल है,
एडिशनल डिडक्शन ऑफ ₹25,000 इज अवेलेबल। कितना एडिशनल डिडक्शन है, मतलब अगर मैंने मेरे पेरेंट्स का, ठीक है, मेरे पेरेंट्स का भी यहाँ पे मेडिक्लेम इंश्योरेंस है, वो किसके लिए अवेलेबल है, सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए 25,000। लेकिन इफ इन केस मैंने अपने पेरेंट्स का भी, यहाँ पे पेरेंट्स मेरे ऊपर है, डिपेंडेंट है, ठीक है, तो मैंने मेरे पेरेंट्स का भी भरा, तो मैंने सपोज यहाँ पे भरा है 30,000 फॉर पेरेंट्स, 30 भी नहीं, 35,000, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम कितना क्लेम कर सकता हूँ, अगर 60 ईयर से 80 ईयर्स तक है, कितना, 60 ईयर से 80 ईयर्स तक है, आई कैन क्लेम एज 25,000। कितना क्लेम कर सकता हूँ, 25,000। अगर 80 ईयर्स एंड अबाव है, यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है, सो इफ 80 ईयर्स एंड अबाव तो 30,000 क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, एंड 30,000 क्लेम कर सकते हो। तो मैक्सिमम यहाँ पे कितना हो जाएगा, मैंने 35 पे किया, लेकिन मैं कितना क्लेम कर सकता हूँ, 30, अगर एज अबाउ 80 ईयर्स है। सो दिस इज द डिडक्शन which is available for the in the mediclaim insurance premium for individual as well as for parents, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे कितना क्लेम होगा, 23,000 इसका, और यहाँ पे 80 अबाव है तो 30,000, 60 अबाव रहेंगे तो सिर्फ 25,000 क्लेम होगा। सो टोटल अगर सपोज मेरे पेरेंट्स है 60 ईयर्स के बिलो, सो 23 एंड 25, 48,000 यहाँ पे क्लेम हो सकते हैं। क्लियर, इज इट क्लियर, एनी डाउट? सर असेसी और स्पाउस और चिल्ड्रन दोनों का मिला के 25,000 ही क्लेम कर सकते हैं ना? दोनों का मिला के 25 ही क्लेम कर सकते हैं, दोनों का ओके मिला सर, के, ठीक है। साथ में थैंक दिया यू। ना, अमाउंट ऑफ डिडक्शन इज ₹25,000 फॉर सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन। ओके सर। ओके, so this is a 80D. Then deduction under section 80DD, ठीक है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD। सो डबल डी में यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये किसके लिए है, दिस सेक्शन डिपेंडेंट हैंडीकैप, मतलब हैंडीकैप का मतलब क्या होता है, जो पर्सन क्या है, जिसको कुछ तो प्रॉब्लम है और उसके वजह से वो पूरा लाइफ टाइम हैंडीकैप रहने वाला है, ठीक है। तो हैंडीकैप है, तो वो पर्सन क्या है, असेसी के ऊपर डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इज टोटली डिपेंडेंट ऑन असेसी, ठीक है, टोटली डिपेंडेंट ऑन असेसी। फॉर एग्जांपल मेरे घर पे एक पर्सन है, ही इज हैंडीकैप, ठीक है, पर्सन मतलब मेरे फैमिली में है, ठीक है, और वो हैंडीकैप है और वो मेरे पे डिपेंडेंट है, मतलब मेरी इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं आई एम पेइंग आउट ऑफ इट, ठीक है, आई एम पेइंग आउट फ्रॉम माय इनकम। सो दिस डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर रेसिडेंशियल इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। तो इंडिविजुअल के लिए भी एप्लीकेबल है, एचयूएफ के लिए भी एप्लीकेबल है। अब अमाउंट ऑफ डिडक्शन, अगर डिसेबिलिटी बिलो 40% है, स्टूडेंट्स बिलो 40%, इफ दैट डिसेबिलिटी इज बिलो 40%, मैं 1 रुपया भी क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। देन इफ 40% टू 80%, कितना, 40% टू 80% है, तो यहाँ पे मैं कितना क्लेम कर सकता हूँ, अमाउंट 75,000। इफ 80% और मोर, ठीक है, देन आई कैन क्लेम एज ₹1,25,000। इसमें एक पॉइंट खाली यहाँ पे याद रखना है, इररिस्पेक्टिव टू व्हाटएवर the expenses are incurred। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मेरे घर पे पर्सन है, वो 40% से 80% तक डिसेबल है, मतलब 50% डिसेबल है, तो आ गया सेकंड कैटेगरी में, सेकंड कैटेगरी में आ गया, मतलब मैं कितना क्लेम कर सकता हूँ, 75,000। अब मैंने उस पर्सन पे, फर्स्ट केस के अंदर मैंने उस पर्सन पे, मतलब फर्स्ट ईयर में मैंने उस पर्सन पे 30,000 ही क्या किया है, 30,000 ही यहाँ पे एक्सपेंसेस इनकर्ड किया है मेरा, 30,000 ही हुआ, ठीक है, तो 30,000 ही हुआ है, फिर भी मैं कितना क्लेम करूंगा, 75,000 करूंगा,
क्योंकि यहाँ पे खर्चा कितना भी हो उससे लेना देना नहीं है मेरे को। यहाँ पे सीधा सीधा उसका डिसेबिलिटी को देख के, उसकी डिसेबिलिटी है 50%, मतलब 40 to 80% की कैटेगरी में आ गया, मतलब 75,000 मुझे यहाँ पे लमसम डिडक्शन मिलने वाला है, इररिस्पेक्टिव टू व्हाटएवर द एक्सपेंसेस आर इनकर्ड। ठीक है, ये पहले साल में हुआ। दूसरे साल में मेरा 90,000 स्पेंड हो गया हैंडीकैप पे, 90,000 स्पेंड हो गया, तो आई कैन क्लेम ओनली 75,000 बिकॉज वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, सेकंड कैटेगरी में। तो कितना भी खर्चा हो, चाहे आप 1 लाख खर्चा करो या 10,000 खर्चा हो, कुछ भी खर्चा मत करो, उनका जो आप क्लेम ले सकते हो वो उनके डिसेबिलिटी के बेस पे ले सकते हो। सो इट डिपेंड्स ऑन योर डिसेबिलिटी, इट डिपेंड्स ऑन द हैंडीकैप डिसेबिलिटी के वो कितना डिसेबल है। जितना डिसेबल रहेगा उसके हिसाब से जो भी आप क्लेम है वो ले सकते हो, खर्चा कितना भी करो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सो this deduction is of 80DD, that is dependent handicap. Clear? समझा ये? सर कोई पर्सन कितना परसेंट डिसेबल है ये कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है। हैंडीकैप का सर्टिफिकेट रहता है, उसके अंदर परसेंटेज लिखा होता है। ओके सर। ओके, एनी डाउट? Shall we go ahead? Yes, sir. Okay. ठीक है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E। ठीक है, am I audible students? Am I Yes, sir. ओके ओके। सबसे पहले हम लोग एक और डिडक्शन डिस्कस कर लेते हैं, तो ये मैंने जो लिखा है वो वापस से लिखना ना पड़े मुझे, दैट इज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U। नाउ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U का मतलब है यहाँ पे 80DD में बात की हम लोग ने, तो DD मतलब डिपेंडेंट हैंडीकैप, U मतलब सेल्फ हैंडीकैप। तो अगर पर्सन सेल्फ हैंडीकैप है, मतलब खुद असेसी हैंडीकैप है और वो खुद अर्न कर रहा है, ठीक है, पैसा भी कमा रहा है, तो उनको भी यहाँ पे डिडक्शन मिलता है, दैट इज अंडर सेक्शन 80U। डिडक्शन की अमाउंट सेम है, सब रूल सेम है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ये पूरा जो मैंने ब्लू में लिखा है सब कुछ सेम है। तो 80DD में सिर्फ डिपेंडेंट हैंडीकैप, 80U में सेल्फ हैंडीकैप, नथिंग इज चेंज इन दिस। ओके, सिर्फ एक चेंज है यहाँ पे, डिडक्शन टू हैंडीकैप रेसिडेंट इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल के लिए HUF में नहीं आता है। क्लियर? Yes, sir. Okay, now coming to the other sections। ठीक है, तो 80DD की बात की हम लोग ने अभी हम बात करेंगे 80E की। 80E is related to education students, 80E is related to education, E for education। ठीक है, वो भी कौन सा वाला एजुकेशन? हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन में क्या क्लेम कर सकते हैं, जैसे कि हियर आपका यहाँ पे जो खुद का जो ये है एजुकेशन है, ठीक है, so here whatever the education higher whatever the loan you have taken on higher education, ठीक है, हायर एजुकेशन परस्यू करते हो, whatever the loan is taken and उसका जो इंटरेस्ट रहता है, ठीक है, उसका जो इंटरेस्ट रहता है, तो एजुकेशन लोन पे जो इंटरेस्ट है दैट अमाउंट यू कैन क्लेम हियर। ठीक है, ये अमाउंट आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, और उसकी लिमिट क्या है? देयर इज नो लिमिट, जितना इंटरेस्ट पे किया पूरे साल भर में उतना क्लेम कर सकते हो। सो इन्होंने यहाँ पे हमारे
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी बहुत स्मार्ट है, उनको पता है कि मैक्सिमम कितना ब्याज भरेगा पूरे साल भर में, एसएससी कितना भर सकता है मैक्सिमम। 50 लाख की लोन कोई लेगा एजुकेशन, चलो लिया 50 लाख की लोन, कितना भरेगा, ठीक है। तो हियर देयर इज मतलब इतना बड़ा अमाउंट नहीं आता है यहाँ पे, इतना बड़ा अमाउंट नहीं आता है, इतना बड़ा अमाउंट क्लेम भी नहीं होता है यहाँ पे, क्लेम मतलब आएगा ही नहीं इतना बड़ा अमाउंट कि आप क्लेम कर सको, ठीक है, क्योंकि उसके लिए इन्होंने यहाँ पे इसीलिए देयरफॉर दे हैव गिवन द लिमिट एज नो लिमिट, ठीक है। तो जितना एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट पे किया है दैट अमाउंट यू कैन क्लेम, ओके। सो दिस इज अबाउट द एजुकेशन, क्लियर, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. देन डिडक्शन अंडर सेक्शन TTA, तो यहाँ पे TTA का एक सेक्शन है which is related to your savings, ठीक है, that is interest on deposits in saving account। so हर एक का सेविंग अकाउंट होता है स्टूडेंट्स, आप सभी का भी होगा सेविंग अकाउंट बैंक में। so बैंक में आपका जो सेविंग अकाउंट है, उस सेविंग अकाउंट पे आपको जो भी इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, वो आपकी इनकम है, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी नॉर्मली हम जैसे लोगों को साल का 600, 700, 800, 1000 आता है मैक्सिमम, क्यों? क्योंकि उतने ही ट्रांजैक्शंस होते हैं हमारे, ठीक है, उतने ज्यादा बड़े बड़े ट्रांजैक्शन नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों के हैं जो बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो वहां पे उनका इंटरेस्ट चला जाता है 15,000। सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरे अकाउंट में मैंने इस साल बहुत सारे पैसे डाले थे और बहुत सारे पैसे भी रखे थे और मुझे अच्छा खासा इंटरेस्ट मिला, दैट इज 15,000 रुपीज, ठीक है। तो अभी 15,000 रुपया मेरा यहाँ पे क्या हो गया, एक तरीके का ये मेरा इनकम हो गया। अब ये 15,000 इनकम जो है, इट इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड, इट इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब इस 15,000 पे टैक्स लगेगा, आई हैव टू पे द टैक्स अंडर द हेड अदर सोर्सेस। तो यहाँ पे उन्होंने एक सेक्शन लाया, दैट इज डिडक्शन अंडर सेक्शन TTA, ताकि जो छोटे छोटे जो ये रहते हैं, मतलब जो अकाउंट होल्डर रहते हैं, उनके लिए ये सेक्शन लाया और बोला कि ये TTA जो है, इट इज एप्लीकेबल फॉर द पर्सन जिसका इंटरेस्ट जो है, सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट इज नॉट इफ इट इज एक्सीडिंग, ठीक है, अगर वो एक्सीड हो रहा है 15,000, 10,000 से एक्सीड हो रहा है, तो उसके ऊपर का अमाउंट उनको टैक्स पे करना है। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि लाइक मेरा 15,000 का यहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है, तो हाउ मच आई कैन क्लेम, मैक्सिमम क्लेम कैन बी ₹10,000। मैक्सिमम कितना क्लेम कर सकता हूँ स्टूडेंट्स, 10,000। मतलब मुझे फिर भी यहाँ पे टैक्स पे करना है, टैक्स पे किस पे करूंगा मैं, टैक्स पे 5,000 के ऊपर। मतलब यहाँ पे मेरा 10,000 के ऊपर तो टैक्स बच गया, तो यहाँ पे मैंने सेविंग, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक तरीके का डिडक्शन ही मिला ना मुझे, आई गॉट द डिडक्शन अंडर सेक्शन TTA। कितना मिला डिडक्शन, मैक्सिमम 10,000। अभी सपोज इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7,000। कितना है, 7,000 मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट मुझे मिला है सेविंग अकाउंट पे 7,000 इन द होल ईयर। मैक्सिमम लिमिट कितना है, 10,000। हाउ मच आई कैन क्लेम, मैक्सिमम कितना क्लेम करूंगा, 7,000, ठीक है। दो द लिमिट इज 10,000, लेकिन मैं यहाँ पे मैक्सिमम कितना क्लेम करूंगा, जितना मेरा हुआ है उतना ही मैं क्लेम करने वाला हूँ। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बाबा 10,000 ही हर बार क्लेम करना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप जितना आपका इंटरेस्ट हुआ है उतना आप क्लेम कर सकते हो, जितना या तो जितना इंटरेस्ट हुआ है वो, या तो फिर मैक्सिमम लिमिट, विच एवर इज लेस, ओके, विच एवर इज लेस out of the interest or maximum limit, okay. So this is your ATTTA. Then the last section is ATU हो गया, ATTTB. Now TTB is a new section that is for the senior citizens, that is the citizen who are aged more than 60 years, 60 years या 60 years से ज्यादा है, ठीक है।
दैट इज वी कैन से एज सीनियर सिटीजन, उनके लिए सेक्शन लाया गया है। अभी नॉर्मली एक सीनियर सिटीजन का क्या रहता है, दे ट्राई टू सेव मोर, या फिर वो स्पेंड ही नहीं कर पाते उतना ज्यादा, क्यों, बिकॉज ऑफ एज, कहीं घूमने नहीं जा सकते ज्यादा बाहर, कहीं ये नहीं होता है, सो दे ट्राई टू सेव, मतलब वहां पे उनकी देयर सेविंग्स आर मोर, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, देयर सेविंग्स आर मोर। सो यहाँ पे सेविंग्स आर मोर मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है कि सपोज एक सीनियर सिटीजन ने फिक्स डिपॉजिट किया, क्या किया है, फिक्स्ड डिपॉजिट, तो फिक्स डिपॉजिट पे ये मिलता है, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट पे ये मिलता है, टीटीबी का सेक्शन, फिक्स डिपॉजिट किया है, सपोज फिक्स डिपॉजिट इज 5 लाख रुपीज, इंटरेस्ट इज 9% पर एनम, कितना आएगा इंटरेस्ट अमाउंट, कितना आएगा, 45,000. वेरी गुड, इंटरेस्ट अमाउंट इज 45,000। सो अब वो 45,000 इनकम आ रही है, अब वो बेचारा सीनियर सिटीजन है, एक तो जैसे तैसे अपनी सेविंग्स की इनकम के ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलता है, अब वो इंटरेस्ट के जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो उस पे अभी वो टैक्स भरेगा कि उसको उसके ऊपर वो जो भी उसका रहना है बेसिक नेसेसिटीज सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे इस 45,000 के ऊपर 1 रुपए पे टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट कितना है, मैक्सिमम डिडक्शन कितना है, 50,000. 50,000। हाँ, अगर 50,000 के ऊपर जा रहा है, दैट इज सपोज यहाँ पे 6 लाख रुपीज हो गया, तो 6-9% कितना हो जाता है, 54,000 हो जाता है। सो 54,000 इंटरेस्ट अमाउंट है, तो मैक्सिमम कितना क्लेम करेगा, 50,000, मतलब ऊपर के जो 4,000 है उस पे टैक्स पे करना है सीनियर सिटीजन। इज इट क्लियर? सो हियर द मैक्सिमम लिमिट इज 50,000, whichever is less out of this, whichever is less. Is it clear? समझे आप Yes, सभी? sir. Yes, sir. Okay, so this is all about the TTB section, and from this we complete the chapter 6 से। So chapter 6 से में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, ATC पढ़ा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स, ठीक है, सॉरी सेविंग्स जो है हमारा सेविंग के रिलेटेड सेक्शन है, 80CCC पेंशन फंड, 80D मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम, 80DD that is dependent handicap, then 80U पढ़ा self handicap, then 80E पढ़ा education, interest on education, interest on higher education loan, then 80 TTA पढ़ा that is related to saving bank account, interest on bank account, 80 TTB fixed deposit. Okay, clear? Yes, sir. शॉर्ट में देख लेते हैं, 80C में 1,50,000 का लिमिट है मैक्सिमम, 80CCC में भी 1,50,000 का लिमिट है, लेकिन एक नोट दिया है कि 80CCE, ठीक है, 80CCE में बोला गया है कि 80C और 80CCC को दोनों को मिला के आप 1,50,000 से ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते हो। देन 80D में आपको यहाँ पे बोला है मैक्सिमम लिमिट इंडिविजुअल के लिए या फिर इंडिविजुअल की जो फैमिली है, दैट इज स्पाउस एंड चिल्ड्रन, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, मैक्सिमम 25,000। सीनियर सिटीजन है, अगर सीनियर सिटीजन मतलब सीनियर सिटीजन नहीं सॉरी, उनके पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स का अलग से 25 क्लेम कर सकते हो। पेरेंट्स अगर एज्ड अबाउट 80 इयर्स है तो क्लेम कितना कर सकते हो, 30,000। देन 80 डबल डी में 0 to 40% नील है, 1 रुपया भी क्लेम नहीं कर सकते हो। 40% to 80% दैट इज आई कैन से 75,000 लमसम अमाउंट इररिस्पेक्टिव ऑफ दी व्हाटएवर द एक्सपेंसेस आर पेड। और 80% अबाव क्या है, यहाँ पे 80% अबाव में 1,20,000 का लिमिट है। सेम इज एप्लीकेबल फॉर 80U, लेकिन यहाँ पे वो असेसी खुद हैंडीकैप है, ठीक है। देन 80E नो लिमिट इंटरेस्ट ऑन, कितना भी इंटरेस्ट पे करो आप पूरा का पूरा क्लेम कर सकते हो। 80 TTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट 10,000 रुपीज मैक्सिमम लिमिट है। 80 TTB आपका यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट है, फिक्स डिपॉजिट पे जो भी इंटरेस्ट है उसका मैक्सिमम लिमिट है 50,000 फॉर सीनियर सिटीजन, ये सीनियर सिटीजन के लिए स्कीम। क्लियर विद दिस? सो दिस इज ऑल अबाउट दी चैप्टर 6 से। सो मेरे साइड से आई हैव कंप्लीटेड ऑल दी थियोरेटिकल पार्ट, बिकॉज सम्स आपको एग्जाम में आने नहीं वाले हैं, एमसीक्यू पैटर्न है। सो आई हैव कंप्लीटेड दिस। इफ इन केस आपको और भी लेक्चर्स चाहिए, ऑफलाइन लेक्चर चाहिए, तो ऑफलाइन लेक्चर के लिए आप परसों आ सकते हो कॉलेज में, लेकिन आप लोग ग्रुप में मुझे बताओ कि सर वी वांट एक्स्ट्रा लेक्चर, यू कैन कम ऑन like day after tomorrow, that is on Thursday,
7:20 के लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में आप आ सकते हो, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर के लिए आपका वहां पे क्लासरूम खाली है, दैट इज इन क्लासरूम नंबर 16। आज हम लोग रॉन्ग क्लासरूम में हम लोग ने लेक्चर लिया, 10 नंबर में लिया, वहां पे किसी और का भी लेक्चर था। सो क्लासरूम नंबर 16 यू कैन कम इफ यू वांट रिवीजन लेक्चर, और एल्स इफ यू वांट one or two more, जितने भी लेक्चर्स आपको चाहिए, प्लीज टेल मी, आई विल कंडक्ट इट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। एनी डाउट रिलेटेड टू दिस चैप्टर 6? No, sir. Okay, okay. So that's all. Thank you so much. Have a nice day. Thank you, sir.